This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. এবার হয়েছে স্বাদ, হ্যাঁ অপূর্ব স্বাদ। এমডিএচ এর চাঙ্কি চাট মশলা জীবনে আসল স্বাদ জাগলো। আসল মশলা এসএস এমডিএচ। ড্রোন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়াম ভেঙে গুড়িয়ে গেল। রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের একাংশ তড়িঘড়ি সরানো হলো ক্রিকেটারদের কারণ আজ রাতেই পিএসএল এর ম্যাচ ছিল রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামে। কৌস্তব রয়েছে আমাদের সঙ্গে। কৌস্তব, কি জানা যাচ্ছে, কি আপডেট রয়েছে বিষয়? দেখো, পাকিস্তানের একাধিক জায়গায় যেরকম ভাবে ড্রোন স্ট্রাইক হয়েছে এবং তাতে কিন্তু রাওয়ালপিন্ডি যে ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে, যে রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বেশ কয়েকটি ক্রিকেট ম্যাচ হয় বেশ কয়েক বছর ধরে এবং ঐতিহ্যশালী ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সেই ড্রোন স্ট্রাইকে কিন্তু রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম কার্যত ভেঙে গুড়িয়ে গেল। এবং যে ছবিটা, যে ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে, ওখানকার যারা স্থানীয়রা যে ভিডিওটা তুলেছেন এবং পাকিস্তানের যে লোকাল জার্নালিস্ট ওখানকার তারা যে ভিডিওটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, তাতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তানের যে রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, যেখান থেকে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস শোয়েব আখতারের লোকাল গ্রাউন্ড বলা হয় এই রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে, সেই রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম কিন্তু কার্যত ভেঙে গুড়িয়ে গেছে, কারণ ওখানে ড্রোন স্ট্রাইক হয়েছে। এবং বিভিন্ন যে জায়গাগুলো রয়েছে, অর্থাৎ আজকে সন্ধ্যেবেলা সেখানে পাকিস্তান সুপার লিগের একটা ম্যাচও ছিল, কিন্তু সেই পাকিস্তান সুপার লিগের ম্যাচও শিফট হয়ে গেছে এই কারণে। রাত 8:30টার সময় আজকে পেশোয়ার ভার্সেস করাচির একটা ম্যাচ ছিল পাকিস্তান সুপার লিগের, কিন্তু একেবারে এই জায়গা থেকে আমাদের অপর প্রতিনিধি রয়েছে রক্তিম আমাদের সঙ্গে। আমি একবার রক্তিমের কাছে চলে যাব। রক্তিম, পাকিস্তান সুপার লিগের ম্যাচ ছিল আজকে কিন্তু, এবং তার আগে এই রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের এই হাল। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর, পিসিবি এমার্জেন্সি মিটিং ডেকেছে, পাক ক্রিকেট বোর্ড এমার্জেন্সি মিটিং ডেকেছে আজকে ভারতীয় সময় বিকেল 4:30টার সময়। সেখানে পিসিবির পক্ষ থেকে সমস্ত যারা পিএসএল এর ফ্র্যাঞ্চাইজিরা রয়েছে সেই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে রাখা হয়েছে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে। এই বৈঠকটা হবে বিকেল 4:30টার সময় ভারতীয় সময়। কারণ এই মুহূর্তে কিন্তু সবচেয়ে বড় এটাই খবর। এবং রাওয়ালপিন্ডিতে, যেটা কৌস্তব বলছিল, রাওয়ালপিন্ডিতে পেশোয়ারি বনাম করাচির যে ম্যাচটা ছিল সেটা শিফট করা হবে, সেটা রিশিডিউল করা হবে। এবং আরও একটি বড় খবর হচ্ছে, এবং আরও একটি वैसे ऑर्डिनरी कॉन्क्लेव में तो हम लोग जाते रहते हैं, तो क्वालिटी कॉन्क्लेव में आने में क्या आपत्ति हो सकती है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, और जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रिसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी
हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं यहां। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही, परंतु पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के एम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता, तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा। ये अगर हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स कर रहे हैं और उसे किसी और के भरोसे छोड़ रहे हैं। यह बात लॉन्ग रन में सही नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा और आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णायक कदम भी उठाया है। आप सब तो जानते ही हैं कि देश में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक इंडिजिनस सिस्टम रहा है और इन फैक्ट्रीज ने एक समय पर बेहतरीन काम किया और देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई भी है। इनके अलावा हमारे पास डिफेंस पीएसयूज का भी एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही है। हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर समान रूप से बल दिया है। इसी दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसे हमने इंश्योर किया ताकि कम समय में ही डिफेंस प्रोडक्शन में व्यापक सुधार हो सके। यहां मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारे लिए कोई बहुत सरल प्रक्रिया नहीं थी। इसमें अनेक जटिल प्रश्न थे और चैलेंजेज भी थे, परंतु हमने इसे इसलिए लागू किया क्योंकि यह एक अर्जेंट रिफॉर्म था। अब प्रश्न उठता है कि यह अर्जेंट क्यों था। इसका एक बड़ा कारण था क्वालिटी। आप सभी स्पेशलिस्ट के समक्ष मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने क्वालिटी को अपना प्रायोरिटी रिफॉर्म एजेंडा बनाया है। हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट को ही टारगेट करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया।
तब से लेकर आज तक डिफेंस पीएसयूज ने लगातार सुधार किया है और कार्पोरेटाइजेशन के पश्चात क्वालिटी प्रोडक्शन को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है और आज ये डीपीएसयूज इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। आज ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी अच्छा फोकस कर रहे हैं। आज ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। वैसे तो अभी कुछ कार्य बाकी है, पर मैं इतना जरूर आश्वस्त हूं যদি এমডিএইচ কিচেন কিং কিচেনে থাকে তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা আরো অনেক কিছু। MDH